বাংলাদেশে বাণিজ্যে বাঁধ ফেলল, বন্ধ হলো বছর পুরনো ট্রান্সশিপমেন্ট প্রথা, যার প্রভাব পড়ল উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল বন্দরেও। আমাদের তো কিছু ক্ষতি হয়েছে, এখানকার লোডিং আনলোডিংয়ের যারা যুক্ত ছিল ট্রাক টু ট্রাক, তারা কাজটা হারালো। এবং দেখা যাচ্ছে যত কার্গো আমরা ইম্পোর্ট করি তার মধ্যে 30% কাছাকাছি এই কার্গো ছিল, অর্থাৎ प्राय 25 থেকে 30% কাজ আমরা এই পোর্ট দিয়ে बांग्लादेश ने इंडियन जो थ्रेड है जो उनके गारमेंट सेक्टर में काम आता है उसको स्टॉप कर दिया है। मुझे लगता है कि आपस में तल्खियां बढ़ती चली जा रही हैं और ये शायद अच्छी बात नहीं है। अच्छी इसलिए नहीं कि बहुत सारी चीजें जो हो रही है ना वो परेशान करने वाली है। अगर इस ढंग से टिट फॉर टैट चलेगा तो फिर दो पड़ोसी देश, फिर वही हाल हो जाएगा जो इंडिया और पाकिस्तान का है, ना कोई आना जाना है, ना कोई ट्रेड है, ना कुछ और है, तो फिर एक और दुश्मन हमारे साथ में आ जाएगा। मुझे लगता है ये कहीं से भी उचित तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, पेट्रापुल जो बॉर्डर है उसके जो कस्टम ऑफिसर है उसने भांडा फोड़ दिया है। 35% रेवेन्यू का नुकसान हो चुका है, यानी वो कम हो चुका है। जो रेवेन्यू वो इंक्रीज था, यानी वो वहां से जो अर्निंग हो रही थी, क्योंकि बांग्लादेश से अब नेपाल, भूटान, ना ही इंडिया में कोई भी सामान नहीं जा रहा। और फिर उल्टा बांग्लादेश ने भी पाबंदी लगा दी है, यानी बांग्लादेश ने कहा कि हमें आपकी ऑन नहीं चाहिए, हमें आपकी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। जो इतने ज्यादा जो लैंड पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए जो व्हीकल्स, जो ट्रक वगैरह आते थे बांग्लादेश में, वो भी नहीं आएंगे। और यानी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है हिंदुस्तान को। ये कस्टम ऑफिसर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, बल्कि इंडियन मीडिया कह रहा है, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है। फिर आप देखें कि दिनेश के वोरा है, उनकी एक वीडियो है, वो भी आपने देखी है, किस तरह वो कह रहे हैं कि इंडिया ने जो चाल चली थी वो किस तरह से वो नाकाम हो गए हैं। हमारे पड़ोस में एक और पाकिस्तान हो जाएगा, यानी एक बचता था बांग्लादेश, उसके साथ भी हमारी दोस्ती अच्छी नहीं है। लेकिन भाई बांग्लादेश ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, यानी जिस तरह से उसने बैन किया है उनकी प्रोडक्ट्स को लेकर के, ये इस वक्त काफी इसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड। বাংলাদেশে বাণিজ্যে বাঁধ ফেলল, বন্ধ হলো বছর পুরনো ট্রান্সশিপমেন্ট প্রথা, যার প্রভাব পড়ল উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল বন্দরেও। কি এই ট্রান্সশিপমেন্ট প্রথা? ২০২০ সালে কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে শুরু হয় ট্রান্সশিপমেন্ট ব্যবস্থা, যার আওতায় বাংলাদেশকে ব্যবসার কাজে নিজের জমি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকে ভারত সরকার। জানা যায় এই জমি বা স্টেশন ব্যবহার করেই পদ্মাপাড়ের রাজ্যে ভুটান, নেপাল ও মায়ানমারের মতো একাধিক দেশের সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে থাকে। কোন রুটে চলত এই ট্রান্সশিপমেন্ট? গোটা বিশ্বেই নিজেদের উৎপাদন করা বস্ত্র রপ্তানি করে থাকে বাংলাদেশ, আর সেই রপ্তানির কাজেই এতদিন সাহায্য করত ভারত। প্রথমে ভারতীয় সীমানায় এসে পৌঁছত বাংলাদেশি পণ্যগুলি, তারপর সেখান থেকে তা ভারতের বন্দর বা বিমানবন্দর হয়ে চলে যেত নির্দিষ্ট দেশে। সুতরাং বলা যেতে পারে এই ট্রান্সশিপমেন্ট ব্যবস্থায় আখেরে লাভটা বাংলাদেশেরই হতো, যা আপাতত বন্ধ হলো বলেই খবর। তবে বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে এই ট্রান্সশিপমেন্ট প্রথা বন্ধের কারণে বাংলাদেশের নেপাল ও ভুটানের মতো দেশে ভারত হয়ে রপ্তানির কোনো বাধা পড়বে না। কাল হলো বিষিয়ে যাওয়া সম্পর্ক। ইউনুস রাজে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে বাংলাদেশের। সম্প্রতি চীন সফরে গিয়ে ভারতের উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিকে অবরুদ্ধ তকমা দিয়ে নিজেদের বঙ্গোপসাগরের অভিভাবক আখ্যান দিয়েছিলেন ইউনুস। এমনকি বাংলাদেশের বন্দর কেন্দ্রিক এলাকায় চীনকে বর্ধিত শিল্পাঞ্চল তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন ইউনুস। সেই ঘটনার রেশ কাটতেই মঙ্গলবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বাংলাদেশের বছর পুরনো ব্যবসা বন্ধ করেছে ভারত। প্রভাব পড়েছে পেট্রাপোলে। পেট্রাপোল সীমান্ত সূত্রে জানা গিয়েছে এই নির্দেশিকার পর বিপাকে পড়বে বাংলাদেশ, ক্ষতি হবে তাদের বস্ত্রের ব্যবসা। অবশ্য কিছুটা প্রভাব পড়বে ভারতের বুকেও। পেট্রাপোল বন্দরের ক্লিয়ারিং এজেন্ট সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানান, এটা ভারতের কতটুকু লস হয়েছে জানি না, যদি হয়ে থাকে খুব স্বল্প পরিমাণে, কারণ এর মধ্যে আমাদের রেভিনিউ আসতো না। অর্থাৎ বায়ার আছে বাইরের দেশ, ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, আর সেলার আছে বাংলাদেশ। তারা তাদের কস্টিংটাকে সহজ করবার জন্য তারা আমাদের দেশকে ব্যবহার করতো। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ২০২০ সালে এটাকে চালু করিয়েছিল। এখানে এসে কার্গো ট্রান্সশিপমেন্ট হয়ে যেত। লোকাল ট্রাক বা ইন্ডিয়ান কোনো ভেহিকেলস বা কন্টেনার এখান থেকে স্টাফ করে কাস্টম সিল এবং জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যেত ইন্ডিয়ার শেষ সীমান্তে বা এয়ার কার্গোতে।
আমাদের তো কিছু ক্ষতি হয়েছে, এখানকার লোডিং আনলোডিংয়ের যারা যুক্ত ছিল ট্রাক টু ট্রাক তারা কাজটা হারালো, এবং দেখা যাচ্ছে যত কার্গো আমরা ইম্পোর্ট করি তার মধ্যে 30% কাছাকাছি এই কার্গো ছিল, অর্থাৎ প্রায় 25 থেকে 30% কাজ আমরা এই পোর্ট দিয়ে হারালাম। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन है ये अपने आप में शायद भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बढ़ता हुआ डिस्ट्रस्ट है ये उसके कारण है। एक दूसरे पे शायद यकीन नहीं रह गया है। अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडस्ट्री का जो 95% जो ये थ्रेड था इंडिया से आता था, और 2024 में बांग्लादेश ने 1.25 मिलियन मैट्रिक टन 1.25 मिलियन यानी कि 12,50,000 मोटा मोटा कहा जाए तो 12.5 लाख टन ये थ्रेड इंपोर्ट किया था इंडिया से, 12.5 लाख टन, और जो 2023 के मुकाबले ये 30-32% ज्यादा है। तो जो हालिया जो तनाव आया है, जो सारा का सारा टेंशन आई है, उससे इंडिया का जो सारा ये जो माल था शायद ये हो सकता है कि उसका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा इंडिया को। और भारत ने बांग्लादेश को करीब 23-24 में $11 बिलियन का माल एक्सपोर्ट किया था। 11 ये शायद चौथा बिगेस्ट, बांग्लादेश जो है चौथा बिगेस्ट कंट्री जहां से इंडिया एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश से भारत में जो इंपोर्ट हुआ तो सिर्फ 2.25 बिलियन टन का हुआ था। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो भारत है वो अब मतलब फंस चुका है और इसको फंसाया गया है। किस तरह से मोदी चाहता था, हिंदुस्तान चाहता था कि बांग्लादेश को प्रेशराइज किया जाए, लेकिन ये खुद हो गए हैं। यानी इनके गले में पड़ गया ये फैसला, और फिर ऊपर से बांग्लादेश ने बैन कर दिया है जो कॉटन थ्रेड मंगवाते थे, जो धागा मंगवाते थे, यानी जो ये यॉन मंगवाते थे इंडिया से, वो अब बांग्लादेश नहीं ले रहा। यानी बड़ा नुकसान है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है। एक तो ट्रक ड्राइवर को हो रहा है, और नंबर 2 अब वो जो यॉन है, जो कॉटन थ्रेड है, वो बांग्लादेश हिंदुस्तान से नहीं लेगा क्योंकि पाबंदी लगा दी है बांग्लादेश ने। अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान से लेगा या किसी और मुल्क से लेगा, तो उसका जो नुकसान है, जो एक्सपोर्ट करता था, 4th हाईएस्ट कंट्री के तौर पर बांग्लादेश को देखता था, यानी एक्सपोर्ट करता था हिंदुस्तान बांग्लादेश में माल, लेकिन अब नहीं होगा। अब इनको ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ेगा हिंदुस्तानियों को। तो जो एक्सपर्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं ना, असल में वो कह रहे हैं कि ये भाई ठीक ठाक झटका मिला है हिंदुस्तान को। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।